ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं। कहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं हमको तो नहीं उनका पता, कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। संगठन तो बहुत है कि संगठन से बात कर ली होगी उन्होंने, लेकिन हमारी तो नहीं सहमति। और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है। अबे मैं तो इनको बता रहा हूँ ना सरकार को कि भाई वापसी ले लो फिर बढ़ा लेंगे। क्या किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है? मैं यही कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं गुमराह किया ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਅੱਜ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पीएम किसान योजना लाए कि किसानों के खाते में 6,000 रुपए के किसान के खाते में डालें। 12 करोड़ किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपया साल सरकार का डालती है। किसानों की आय दुगनी हो 2022 तक, इसके लिए सारे कदम उठाए गए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो आई थी, लागू कोई नहीं करता था। मोदी जी ने वो भी लागू किया कि लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमारी सरकार ने तय किया। फिर एमएसपी के दाम अमन जी हमने लगातार बढ़ाए हैं। 2014 से लेकर 2020 तक का आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि आखिरकार ये किसान भाई कुछ राज्यों के आज धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं।
मैं यही कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। देखिए, जिस तरह वो उस दिन 3 तारीख की मीटिंग करके गए, उसके बाद उन्होंने यही आकर कहा कि ये बात जो आपने प्रपोजल अब रखी है, आज से 10 दिन पहले कह देते तो हम मान जाते, लेकिन अब हमारे पर प्रेशर इतना है, हमें लोग मानेंगे नहीं, इसलिए हम सारा एक्ट को रिपील करना चाहते हैं। मेरिट पे नहीं, लोगों के प्रेशर के नीचे आकर उन्होंने ये बात कही, और हमने तो उनकी हर बात मान ली। जो 31 यूनियन है, कोई कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड है, कोई आपके साथ एफिलिएटेड है, कोई सीपीआई के सीपीएम के साथ, इनकी एफिलिएशन तो किसी ना किसी के साथ है ही, इसमें कोई ना कहने वाली बात ही नहीं है। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। हमने उनकी प्रपोजल जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की प्रपोजल दी थी, वो इसी पे ही रद्द की थी कि हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। सरकार ने हमारे से बातचीत करनी है तो इससे हटकर प्रपोजल को छोड़े, इसको रद्द करने की बात करे। ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਹ ਵਗਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਹਾ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। नुकसान तो सभी को, गाड़ी खड्डों में जा रही है, टूट रही है, परेशानी है, सामान किसी का इधर गिर रहा है, किसी का उधर गिर रहा है, जाम लग जाता है। चक्कर हमारे तो लगते ही नहीं, 1-2 चक्कर लग गया आपने चल रखा। मैं पुणे से आ रहा हूँ, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। पहले मैं दिल्ली से नरेला आया, नरेला से फिर पैदल आया 5-7 किलोमीटर, जहाँ तक आगे जाना है अमृतसर, आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। प्रॉब्लम तो बहुत हुई है, ठंड है, सामान भी है, साथ में बच्चे भी हैं, उनको लेके इतनी दूर से आना पड़ रहा है, तो जाम की वजह से बहुत दिक्कत है हमें। तो गुजरात दौरे दौरान प्रधानमंत्री ने विरोधियों ते वार किया। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ये विरोधी तरह अपने तरह ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ नहीं चुक सकियां। क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है, क्या आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग
किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है, जिन्हां किसानों की संघर्ष दौरान मौत हुई है उन्होंने दी बहुत दुख का प्रगटावा किया है। दिल्ली बॉर्डर तो पटियाला किसान आ रहे सी, 2 की जान जा चुकी है, 3 जख्मी ने, जिन्हां ते अफसोस जताया मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। तो रोजाना ही वड्डी गिनती में दिल्ली नूं किसान कूच कर रहे हैं। मानसा तो वड्डी गिनती में किसान रेल के जरिए दिल्ली नूं रवाना हुए। दैनिक एक्सप्रैस गड्डी जो मानसा तो दिल्ली नूं रवाना हुई है, सैकड़े किसान दिल्ली नूं पहुंच रहे हैं। जिमें कि किसान विरोधी कानून बने ने जमीन के लिए, क्लस्टर बनने अडानी अंबानियां नूं दिते जा रहे हैं, तो जवानों के डीए कटौती, उम्र च सर्विस का वाधा, तो होर उन्होंने जेड़े कि उन्होंने हकों नूं मारदे कानून बन रहे हैं, उन्होंने लिए हुण जवान ते किसान इकट्ठे हुए ने। असी सरकार नूं अपील करते हैं कि इन्हां ते गौर करके दोबारा विचार करके किसानां ते जवानां दे हक च सेंटर सरकार खड़े। जिन्ने भी एक्सरमैन साडे खड़े आ, साडे बच्चे भी नाल जा रहे हैं, क्योंकि साडे नाल भी धक्का हो रहा, किसानों नाल भी धक्का हो रहा है। इस तरह करके लगता है कि जिवें इस तरह असीं जाई जाने भी जल्दी तो जल्दी असीं आपदी जित प्राप्त करांगे। अगर जित ना प्राप्त की गई तो हो सकता होर बाहरले बंदे भी आके साडे नाल साथ देण और इनू दोबारा साडा वापस कानून लिआंदा जाए। बीकेयू कादियां ने एक शलाघायोग फैसला लिया कि जो किसान दिल्ली काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने खेतों के किस तरह काम किया जाए। एक टीम का गठन किया गया है, जो टीम किसानों के खेतों में स्प्रे कर रही है। किसानों दी कणकां नूं पानी लगाउण दा काम भी किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਵੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਰੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ। 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ दिल्ली हरियाणा की सरहद से भी यह सेवा मुक्त जवान हो डटन जा रहे हैं। वड्डी गिनती में सेवा मुक्त फौजी हुण किसानों के हक में हाँ का नारा मार रहे हैं। जिमें कि किसान विरोधी कानून बने ने जमीन के लिए, क्लस्टर बनने अडानी अंबानियां नूं दिते जा रहे हैं, तो जवानों के डीए कटौती, उम्र च सर्विस का वाधा, तो होर उन्होंने जेड़े कि उन्होंने हकों नूं मारदे कानून बन रहे हैं, उन्होंने लिए हुण जवान ते किसान इकट्ठे हुए ने। असी सरकार नूं अपील करते हैं कि इन्हां ते गौर करके दोबारा विचार करके किसानां ते जवानां दे हक च सेंटर सरकार खड़े। जिन्ने भी एक्सरमैन साडे खड़े आ, साडे बच्चे भी नाल जा रहे हैं, क्योंकि साडे नाल भी धक्का हो रहा, किसानों नाल भी धक्का हो रहा है। इस तरह करके लगता है लंबे समय तो किसान खेती कानून रद्द करवाउण ते अड़े होए ने ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮਹਿਤਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
पंजाब दे नगर निगम चोणां लई स्थानक सरकारां विभाग वालों जिहड़ी तैयारी शुरू की गई है वार्डबंदी के खिलाफ अकाली दल के शहरी प्रधान एडवोकेट राजविंदर सिंह सिद्धू ने हाईकोर्ट विच मुड़ विचार अर्जी दाखिल की है, जिस ते मंगलवार नूं सुनवाई होण जा रही है। ते डबल बेंच ने मामले की सुनवाई भी की ते इसे मामले की सुनवाई करदे अगली तारीख 22 दसंबर मुकर्रर की है। अर्जी पाने वाले का कहना है कि नवी वार्डबंदी पूरी तरह नाल गलत है। पंजाब अते म्यूनसिपल ऑर्डीनेंस के कॉलज 95 का उलंघन है। नवी वार्डबंदी विच ना एक समानता है ते ना ही एक दूजे नाल मिलते हैं। सिद्धू मूसेवाले नूं सम्मन होया। संगरूर कोर्ट ने मानहानि केस दे विच यह सम्मन जारी किया। 5 जनवरी नूं पेश होने का हुक्म भी दिता गया है। मूसेवाले का संजूगण आया सी, उस नूं लैके नोटिस जारी होया ते 5 तारीख नूं कोर्ट विच पेश होने के हुक्म जारी होए। फतेहगढ़ साहब के मंडी गोबिंदगढ़ विच उस वेले सनसनी फैली जदों नौजवान की लाश नहर विचों बरामद हुई। एएसआई ने दस्सिया कि मृतक की पहचान आनंद अरोड़ा वजों हुई है। मृतक के पिता ने दस्सिया कि उसका बेटा करियाने की दुकान पर काम करता सी। ते 1971 की जंग में लापता हुए मंगल सिंह के जिंदा होने की खबर तो बाद परिवार के खुशी की लहर है। जलंधर के दातार नगर की 75 साल की सत्या देवी पिछले कई सालों तो अपने पति का इंतजार कर रही सी। जदों मंगल सिंह लापता होया सी तो उस वेले उसकी उम्र 27 साल थी। ते हुण पिछले कई सालों तो सत्या देवी ने अपने पति की याद विच सारी जड़ी जिंदगी तक गुजारी। विदेशी मंत्रालय वालों भेजे गए पत्र ने सत्या देवी की उम्मीद नूं मुड़ जिंदा किया। भारत सरकार नूं कई पत्र भेजण तो बाद हुण 49 साल बाद विदेश मंत्रालय ने उन्हां दे पति ते जिंदा होने की खबर दी है, जो कि पाकिस्तान की जेल विच बंद है। ते हुण भारत की सरकार पाकिस्तान सरकार नाल राबता कायम करने की कोशिश कर रही है। उन्हें क्या वो डूब गया, कैची डूब गई है। अच्छा, बस हाँ भी बंदे नहीं नके बिचों बंदे बोले 3-4 ते साढ़े तीजे नंबर ते फिर ये बोले बच्चे दसे भी मैं फैमिली मैन आ, 2 मेरे बच्चे हैं दलजीत सिंह बलजिंदर सिंह। सानू अजे भी आस हैगी है कि वो हैगी आ ते वो साडी ये जिहड़ी आस साडी उस वेले पक्की होई जो 2012 ਵਿੱਚ पाकिस्तान जेल चों कैदी छड्डिया उन्होंने रिफुद्दीन नाम का वो आया ਉਹਦੇ हत्थ ਵਿੱਚ मतलब उधरों एक बंदा के शर्मा आ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾ मतलब ਲੈਟਰ भेजिया ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ पाकिस्तान जेल 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ फौजी ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मतलब ਇੰਨੀ मतलब ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦਇਆਨੀ ਕਿ पंजाब हरियाणा दिल्ली सने देश के कई सूबे ठंड का कहर वधिया है तो कोहरे दी तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे। फरीदकोट, दिल्ली, अमृतसर जिथे संघनी धुंध का कहर देखा जा सकता है। आवाजाही काफ़ी प्रभावित हो रही है। 3 तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने कि विजिबिलिटी घट हो चुकी है, ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पै चुकी है।